بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا گزشتہ کلاس میں ہم نے بر اعظموں کی مختصر سا تعارف پڑھا تھا، بر اعظموں کا۔ آج ہم جو یہاں پہ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے بر اعظم ایشیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، مختلف بر اعظموں کا ہم نے مختصر تعارف پڑھا تھا۔ اب ہم ایک ایک بر اعظم کو لے کر اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے آج ہم پڑھ رہے ہیں بر اعظم میں بر اعظم ایشیا۔ دیکھیں، میں نے گزشتہ کلاس میں بھی سوال کیا تھا آپ لوگوں سے، دوبارہ آج یہ سوال آپ کے سامنے موجود ہے کہ بر اعظم کیا ہوتا ہے یا بر اعظم کسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہے، ذرا آپ جواب دیں، میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں۔ کیا ہوتا ہے بر اعظم؟ صحیح، چلیں دیکھتے ہیں۔ دیکھیں میرا تعریف آپ کے سامنے آ گئی بر اعظم کی۔ میں نے گزشتہ کلاس میں بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ بر کہتے ہیں خشکی کو، ٹھیک ہے، اور اعظم مطلب بڑا۔ تو اس حساب سے اس کا مطلب آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ زمین کا ایک بڑا علاقہ جو سمندر میں گھرا ہوا ہو، ٹھیک ہے، بر اعظم کہلاتا ہے۔ زمین کا ایسا بڑا خطہ، ایسا بڑا ٹکڑا، بڑا علاقہ جس کے چاروں اطراف سمندر ہو، بر اعظم کہلاتا ہے۔ اس تعریف کے مطابق 7 بر اعظم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں بر اعظم ایشیا کو۔ اچھا بیٹا، بر اعظم ایشیا کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مختلف حصوں میں بر اعظم کو تقسیم کیا گیا ہے، تو بر اعظم کی تقسیم آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلا جو اس کی تقسیم ہے وہ ہے جنوبی ایشیا، ساؤتھ ایشیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح دوسرا جو حصہ ہے اس کا وہ کہلاتا ہے وسط ایشیا یا سینٹرل ایشیا، ٹھیک ہے۔ تیسرا جو حصہ ہے بر اعظم ایشیا کا وہ کہلاتا ہے مشرق بعید، اور چوتھا حصہ مشرق وسطی مڈل ایسٹ، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو اس طرح بر اعظم ایشیا چونکہ دنیا کا سب سے بڑا بر اعظم ہے، اس لیے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ساؤتھ ایشیا، سینٹرل ایشیا، فار ایسٹ، مڈل ایسٹ، ٹھیک ہے بیٹا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آگے چلتے ہیں ہم۔ یہ دیکھیں، ایشیا کا میپ آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا ساؤتھ ایشیا کو، دیکھتے ہیں کون سا علاقہ ہے۔ یہ دیکھیں، جس کے اطراف میں یہ لائن موجود ہے، ٹھیک ہے، یہ ساؤتھ ایشیا کہلاتا ہے، جس میں پاکستان، انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش، بھوٹان، سری لنکا، مالدیپ، یہ جزائر بھی اسی میں آتے ہیں، ساؤتھ ایشیا کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور یہ دوسرا ہے وسط ایشیا یا سینٹرل ایشیا، ٹھیک ہے۔ تان والے اکثر ممالک اس میں شامل ہیں، جن کے آخر میں تان آتا ہے، ٹھیک ہے۔ قازقستان، ازبکستان، کرغزستان، تاجک، اور اسی طرح ترکمانستان، مختلف ممالک ہیں یہ، جو وہی ممالک ہیں جو سوویت یونین میں شامل تھے، اور 1992 میں جب رشیا کو شکست ہوئی تھی، بلکہ اس سے پہلے، تو اس وقت یہ آزاد ریاستوں کی حیثیت سے نقشے پر آئے تھے، ٹھیک ہے بیٹا، یہ والے ممالک۔ اسی طرح تیسری جو تقسیم ہے وہ ہے فار ایسٹ، ٹھیک ہے، جسے ہم کہتے ہیں مشرق بعید۔ بعید کہتے ہیں دور کو، بالکل دور مغرب میں، یعنی جہاں سے اس آپ یہ سمجھ لیں کہ اس دنیا کا کنارہ ہے پہلا، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ جہاں سے سورج جہاں سے طلوع ہوتا ہے وہاں وہ ممالک، ٹھیک ہے، جن میں چائنا ہے، چائنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا، منگولیا ہے، جاپان ہے، ساؤتھ کوریا ہے، نارتھ کوریا ہے، تائیوان ہے، ٹھیک ہے، میانمار ہے، اور تھائی لینڈ ہے، کولمبیا ہے، ویتنام ہے، برونائی دارالسلام ہے، ملیشیا ہے، سنگاپور ہے، انڈونیشیا ہے، لاؤس ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ ممالک آتے ہیں فار ایسٹ میں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو سمجھ میں آ رہی بیٹا بات؟ چوتھے جو ممالک ہیں اس میں آتے ہیں، اسے کہتے ہیں مڈل ایسٹ، مشرق وسطی۔ اس میں اکثر ممالک آپ دیکھ رہے ہوں گے نقشے پر عرب ممالک ہیں، ٹھیک ہے، جیسے خود سعودی عرب ہے،
सऊदी अरब के बाद यमन है, ओमान है, यूएई है, बहरीन है, कतर है, कुवैत है, इराक है, शाम है, फ़लस्तीन है। ठीक है। इसी तरह एक पर्शियन मुल्क भी उसमें शामिल है, ईरान। इसी तरह तर तुर्की भी उसी में आता है। ठीक है। इसमें मिडल ईस्ट के अंदर। ठीक है बेटा। तो इनकी अच्छा पहचान आपको ये इस तरह से हो जाती है कि मिडल ईस्ट के अंदर, मशरिक़ वस्ती के अंदर, आप ये याद रखें कि अक्सर अरब ममालिक हैं। ठीक है बेटा, अरब ममालिक हैं। और इसी तरह सेंट्रल एशिया में अक्सर वो ममालिक हैं जिनके आखिर में तान आता है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के अलावा देखें, आप देख रहे होंगे नक्शे में कि वो ममालिक जिनमें तान आ रहा है आखिर के अंदर। अब साउथ एशिया, जिसमें ख़ुद हमारा पाकिस्तान भी शामिल है, ठीक है, वो ममालिक, उसकी तादाद बहुत कम है। तकरीबन 7 या 8 ममालिक बनते हैं वो जो जिसे बर सग़ीर भी कहा जाता है, वही ममालिक हैं जो साउथ एशिया में आते हैं। इसके अलावा फार ईस्ट में, जो इसके अलावा है, वो पूरा फार ईस्ट है। ये सारे ममालिक यहाँ पे इस वक्त ये एरो मौजूद है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये तमाम ममालिक फार ईस्ट के मालिक हैं। तो बेटा ये तकसीम जो बर आज़म की है, बर आज़म एशिया की, ये आपको समझ में आ गई। इससे मुतल्लिक आपका अगर कोई भी सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने आज पढ़ा बर आज़म एशिया की तकसीम। अब उनमें जो सबसे पहला है वो है साउथ एशिया। ठीक है बेटा, जनूबी एशिया। ठीक है, जनूबी एशिया को हम देखते हैं। ये देखिए बेटा, इस वक्त आपके सामने एक नक्शा मौजूद है जनूबी एशिया का, जिसमें जनूबी एशिया के ममालिक दिखाए गए हैं। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, और श्रीलंका, मालदीव। ठीक है बेटा, ये साउथ एशिया कहलाता है, जिसका नक्शा इस वक्त आपके सामने मौजूद है। नक्शे में ममालिक और इसी तरह उनके जो दारुल हुकूमत, कैपिटल हैं, वो भी दिखाए गए हैं। अफ़गानिस्तान का काबुल, पाकिस्तान इस्लामाबाद, न्यू दिल्ली, और इस तरह कोलंबिया या श्रीलंका का, या आप ये कह लें कि अभी जो इसका नाम है श्री जयवर्धने, मालदीव का माले है, नेपाल का काठमांडू है, बांग्लादेश का जो कैपिटल है वो ढाका है, और इसी तरह भूटान का थिम्पू है। ठीक है बेटा। और ये एक नक्शा आपके, वो था पॉलिटिकल मैप। ये फिजिकल मैप इस वक्त आपके सामने। हमने नक्शे की 2 अक़साम पढ़ी थी, पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप। तो पॉलिटिकल मैप में मैंने आपको ये बताया था पढ़ाते हुए कि नक्शे की ममालिक की बॉर्डर्स को उसमें दिखाया जाता है, बाउंड्रीज को। ठीक है। और या अगर वो किसी मुल्क का नक्शा है या बर-ए-आज़म का नक्शा है, तो मुख्तलिफ ममालिक के जो बाउंड्रीज हैं, सरहदें हैं, उनको दिखाया जाता है। ठीक है। और फिज़िकल मैप में जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो लैंड फीचर्स दिखाए जाते हैं। ज़मीन की मुख्तलिफ जो खसूसियात हैं वो शो कराई जाती हैं उसमें बिलूम। ये देखें आप, नक्शा आपके सामने इस वक्त मौजूद है। ये इसके वो अलामात या सिंबल्स भी मौजूद है यहाँ पर एक साइड में इसके। तो इसकी मदद से हम इस नक्शे को आसानी के साथ समझ सकते हैं। ये सिंबल्स ये शो कर रही हैं कि कौन सा खिता सतह समंदर से कितना बुलंदी पर है। ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस कलर को आप देख रहे हैं। ये देखें बेटा, ये जो इलाका है, ये जो माउंटेन रेंजेस हैं, बड़ी दुनिया की मशहूर तरीन हिमालयन रेंज, कराकरम रेंज, हिंदू कश रेंज, ये पूरा सतह समंदर से कितना फीट बुलंद है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद फिर मुख्तलिफ कलर हैं जो ये शो करा रहे हैं कि सतह समंदर से कितने बुलंदे पर है। ये ग्रीन कलर है, ये वो इलाके शो कराए जा रहे हैं जो मैदानी इलाके हैं, जहाँ पर दरिया बहते हैं और उनके ज़रिए से काश्तकारी की जाती है। इसी तरह आप देख रहे होंगे डिज़र्ट भी इसमें शो हो रहे हैं यहाँ पर। ये रिवर्स हैं, इंडस रिवर, और ये मुख्तलिफ जो पाकिस्तान में जो दरिया हैं, इसी तरह ये इसके इंडिया के दरिया दिखाए गए हैं, यहाँ बांग्लादेश के दरिया दिखाए गए हैं। ठीक है बेटा। तो फिज़िकल मैप में यही होता है कि उसमें सहरा, दरिया, मैदानी इलाका, पहाड़, सतह मुर्तफ़ा, ये चीज़ें दिखाई जाती हैं। ठीक है। और ये देखें आप, यहाँ पर बलूचिस्तान को जब हम पढ़ रहे थे, इससे पहले ही हमने जो क्लास की थी पाकिस्तान की लैंड फीचर के हवाले से, जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि बलूचिस्तान का बेशतर हिस्सा
प्लेटिव यानी सतह मुर्तफ़ा पर मुश्तमिल है। तो इसमें भी आप ये देख सकते हैं कि देखें बलूचिस्तान का कितना हिस्सा है जो कितना परसेंट होगा, ये देखें आप यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो सतह मुर्तफ़ा है, पहाड़ हैं। सतह मुर्तफ़ा और पहाड़ों में ये फ़र्क होता है कि पहाड़ जो होते हैं वो नोकदार होते हैं और उनकी सतह हमवार नहीं होती है। उसके मुकाबले में सतह मुर्तफ़ा, एक तो पहाड़ों से उसकी बुलंदी कम होती है, और दूसरा ये पहाड़ों के मुकाबले में वो हमवार होती है सतह मुर्तफ़ा। ठीक है, तो ये बलूचिस्तान को आप देख लें यहाँ पर। इसी तरह ये देखें यहाँ पर, ये तो बहुत ही बुलंद पहाड़ है, ये कराकरम जिसमें केटू भी है। ठीक है, और ये हिंदू कश है। यहाँ पर इसकी जो पाकिस्तान में जो सबसे बुलंद चोटी है हिंदू का इसकी हिमालयन रेंज की, वो है नांगा पर्वत। ठीक है, और केटू की कराकरम की जो पाकिस्तान में बुलंद तरीन चोटी है वो है केटू, जो दुनिया की दूसरे नंबर पर है। और इसी तरह हिंदू कश की जो पाकिस्तान में जो चोटी है माउंटेन, जो हिंदू कश रेंज है माउंटेन की, वो पाकिस्तान में जो चोटी है वो है अपना तिरछमीर। ठीक है बेटा। इसी तरह यहाँ पे देखें बेटा, ये मैदानी इलाका इंडिया में है, कुछ इसका बांग्लादेश में हिस्सा है। इसी तरह फिर यहाँ पर इंडिया के बिल्कुल साउथ में, ठीक है, यहाँ पर भी मगरिबी पहाड़ी सिलसिले सिलसिले हैं। इनको मगरिबी पहाड़ी सिलसिला कहा जाता है, या आप इसे कह लें कि बिल्कुल साउथ के जो पहाड़ी सिलसिले हैं, इसके देखें मगरिब में यहाँ पर भी पहाड़ हैं और इधर मशरिक में भी पहाड़ मौजूद हैं। ठीक है बेटा, ये नक्शा आपको समझ में आ गया? इससे मुतल्लिक कोई भी आपका सवाल हो? इसके बाद हम देखते हैं साउथ एशिया के जो ममालिक हैं, जनूबी एशिया के। ये देखें बेटा, 8 ममालिक इसमें शामिल हैं। आपको स्लाइड पे इस वक्त नज़र आ रहा होगा। मुल्क का नाम, दारुल हुकूमत, मजहब। ठीक है, तो आप ये देखते जाएं। पाकिस्तान, मुल्क का नाम पाकिस्तान, दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, और उसका मज़हब है इस्लाम। इसी तरह आप हर एक मुल्क का देखें, भारत है, अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, और मालदीव है। ये देख लें बेटा, नोट भी कर लें अपने पास। ये हमारी क्लास आज साउथ एशिया का बुनियादी तारुफ और उनके ममालिक का और उनके दारुलहुकूमत का। इसके अलावा हम तफसीली तारुफ, अभी हमारी एक क्लास जारी है। आज हम इसे यहीं तक रखते हैं। अगर आपका कोई भी इससे मुतल्लिक सवाल है तो आप सवाल कर लीजिए। कोई सवाल है तो बेटा सवाल आप कर सकते हैं इसमें। मैं दोबारा एक दफ़ा स्लाइड आपके सामने आप सामने चलाता हूँ, ताकि आपने जो चीज़ें नोट करनी हो वो आप नोट कर लें। ये वाली स्लाइड अपने पास महफूज कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। इसी तरह हम आगे चलते हैं। ये नक्शे हैं, ये ने भी अपने पास महफूज कर लें। ये पॉलिटिकल मैप है, ये फिज़िकल मैप था। ये पूरा एशिया का मैप है, वो साउथ एशिया का था, और इसमें मुख्तलिफ जो ख़ित्ते हैं, मुख्तलिफ जो तकसीम है, उसको दिखाया गया है इस मैप में। ये बर अज़म एशिया की तकसीम। बर अज़म की तारीफ़। ठीक है बेटा, तो अगर आपका कोई सवाल हो तो आप सवाल कर लीजिए, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ।